الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ تک جتنے سیشنز ہوئے ان سیشنز کے اندر آپ نے دیکھا کہ آپ کے سامنے ایک سلیبس کا انٹروڈکشن کرایا گیا، تعارف کرایا گیا، اور اس کے علاوہ اپنی رسپانسبلٹیز کو بتایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارا نام مسلمان رکھا ہے، وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَذَا، اس سے پہلے بھی تمہارا نام، اس کے پہلے کی بھی کتابوں میں تمہارا نام مسلمان ہی رکھا گیا تھا، اور اس شریعت میں بھی اور اس کتاب میں بھی تمہارا نام مسلمان رکھا گیا ہے۔ اور تمہاری ذمہ داری کیا ہے؟ تمہاری ذمہ داری دے دی گئی کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ یو آر دا بیسٹ نیشن، یو آر دا چوزن نیشن۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو منتخب کر لیا، تم کو اللہ نے منتخب کر لیا ہے، اور تم کو جو ہے پروڈیوس فار مینکائنڈ، ساری انسانیت کے لیے بھیجا گیا ہے۔ انسانیت کے لیے کیا کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے، کیا رسپانسبلٹیز اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، جب تک ان رسپانسبلٹیز کو ہم نہیں سمجھیں گے، جب تک ان ذمہ داریوں کو ہم نہیں سمجھیں گے تو کیسے ادا کریں گے؟ آج ہم بچے ہیں اور ماں باپ کی ذمہ داریاں ہم کو ادا کرنی ہے، کل کو چل کر کے ماں باپ کی ہمیں خدمت کرنی ہے، تو اب ماں باپ کی خدمت کا کتنا حق ہے ہمارے اوپر، ہمیں سیکھنا پڑے گا۔ ماں باپ کا کیئر کرنا ہے، ہمیں سیکھنا پڑے گا۔ کیسے ہمیں پتہ چلے گا کہ ماں باپ کی خدمت اللہ کی عبادت ہے؟ کتنے لیول تک خدمت کرنا ہے؟ اللہ اور رسول کے بعد کس کا مقام ہے؟ ماں باپ کے بعد پھر کس کا مقام ہے؟ کل کو اور بڑے ہم ہوں گے، ہمارے بچے ہوں گے اور ہماری نسلیں آگے بڑھیں گی، تو پھر جو ہے ان کا حق کیسے ادا کرنا ہے، سوسائٹی کا حق کیسے ادا کرنا ہے؟ تو اس کی بیس کیا ہوتی ہے، اور اس کی بیس کے واسطے جو کیریکٹر بلڈنگ کے اندر آپ کے سامنے جو جن چیزوں کا انٹروڈکشن کرایا جا رہا ہے مستقل، اور جو کلاسیں آپ کی آگے چلنے والی ہیں، اور جو کریکولم آپ کے لیے ہے جس کا انٹروڈکشن اس کے پہلے کرایا بھی گیا آپ کے سامنے، کہ ہماری زندگی کے اندر سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ ایمان اور اسلام۔ ایمان اور اسلام اس کی ڈیفینیشنز ہیں، اس کے تعارف ہیں، اور اس کو یہ بھی بتایا گیا تھا آپ کو کہ جس طرح سے اسلام کے پلرز ہم سمجھتے ہیں، پلرز آف اسلام، اسی طرح سے پلرز آف ایمان بھی ہوتے ہیں۔ پلرز آف اسلام میں سے، اسلام کے ارکان میں سے ایک پلر بھی، ایک رکن بھی ہمارے ہاتھ سے چھوٹا اور ٹوٹا تو ہم مسلمان نہیں کہلا سکتے۔ تو اسی طرح سے ایمان میں سے بھی کوئی ایک پلر ہمارے ہاتھ سے چھوٹا اور ایک پلر بھی ہماری زندگی سے ٹوٹا تو پھر ہم مومن نہیں کہلا سکتے، ایمان ہمارا ادھورا رہ جائے گا۔ اور اسلام اور ایمان جو ہے وہ کیریکٹر اور بیہیویئر کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور ریفرنسز جو ہمارے قرآن اور حدیث اور سنت ہیں، اسی سے اسلامک لا بنتا ہے۔ اسی کریکولم کے اوپر بیچ 1 کا کورس جو چل رہا ہے پچھلے سال سے، اس کے پہلے کے سال سے جن کو بیچ 1 بنایا گیا ہے، ان کا کورس جو ہے قرآن اور حدیث سے آگے چلتے ہوئے اسلامک لا تک پہنچے گا، اور بیچ 2 جو بنایا گیا ہے اس کا ایمان اور اسلام سے لے کر کے اس کی جو بیسک اور جو ضروری ریکوائرمنٹس ہیں اس تک پہنچے گا۔ آئیے یہ ڈائیگرام اپنے سامنے دیکھیے، یہ جو ڈائیگرام آپ کے سامنے اب آیا ہے، اس ڈائیگرام کو آپ دیکھیے۔ اس ڈائیگرام کو اپنے موبائل میں تھوڑا زوم بھی کر سکتے ہیں آپ لوگ، بعد میں ہم PDF بھیجتے ہیں۔ اس کو آپ کو ایک کام کرنا ہے کہ PDF سامنے رکھ کر کے آپ کو ایک ایک پوائنٹ، جو بڑے بڑے اس کے اندر پوائنٹس ہیں، یہ نوٹ کر لیجئے کہ اس کی اکارڈنگ اپنی نالج اور اپنی معلومات کو چیک کرنا ہے کہ ہماری ایج 9 10 سے لے کر کے 20 اور 25 اور 25 پلس بھی ہو چکی، جتنے آپ اسٹوڈنٹس ہیں ان کی ایج دیکھی جائے۔ اس میں ہم ہر چیز جانتے ہیں، لیکن اپنے دین اور اپنے شریعت کو جو فار ایور کی زندگی کے لیے ہے، آخرت کے لیے ہے، جو جنت میں لے جانے والی چیزیں ہیں، اس کے لیے ہم کتنا وقت استعمال کرتے ہیں اور کتنے % ہم کو آتا ہے۔ ایک مسلمان کے لیے کتنی چیزیں جاننا ضروری ہوتا ہے، اس ڈائیگرام میں ملتا ہے۔ آئیے ہم آج اس ڈائیگرام کو آپ کو سمجھاتے ہیں اور لاسٹ میں اس پروجیکٹ کا اعلان بھی کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو اوپر دکھ رہا ہوگا طہارت لکھا ہوا ہے، انگلش میں بھی طہارہ لکھا ہوا ہے، اور عربی میں طہارت لکھا ہوا ہے۔ طہارت بھی پڑھتے ہیں اور طہارہ بھی اس کو پڑھتے ہیں۔ طہارت کے بارے میں نارملی عام طور پر ہمیں اور آپ کو ایک حدیث یاد رہتی ہے، الطہور شطر الایمان یا الطہور نصف الایمان، پاکی اور صفائی، طہارت آدھا ایمان ہے یا پارٹ آف دا ایمان ہے۔ آدھا ایمان جب ہم کہتے ہیں تو پھر اس کا ایلابریشن اپنی لائف میں کیوں نہیں کرتے؟ اس کے بارے میں ہم نہیں سوچتے کہ جب ہماری زندگی 100% میں بانٹ دی جائے، 100 نمبرز میں بانٹ دی جائے تو 50 نمبرز طہارت کو دے دیا گیا، تو واٹ از دا امپورٹنٹ آف طہارت ان آور لائف؟ ہماری زندگی کے اندر طہارت کی اہمیت کیا ہے؟
बस तहारत को इतनी समझते हैं कि वजू को बैठ करके अच्छी तरह से कर लिया जाए, गुस्ल के मसाइल सीख लिए जाए, बस इसी को तहारत समझते हैं। तहारत में जब देखा जाए तो तहारत के आपको आगे कोर्स कराया जाएगा तो उसके अंदर तहारत के 3 हिस्से कराए जाएंगे। एक तो नंबर 1 बॉडी एंड एसोसिएटेड थिंग्स, जिसके बारे में आप आमतौर पर पढ़ते भी हैं, यानी इसके मसाइल क्या हैं, पाकी के मसाइल क्या हैं, नापाकी के मसाइल क्या हैं, वजू के मसाइल क्या हैं, गुस्ल के मसाइल क्या हैं, ये सारे के सारे मसाइल आपको पढ़ाए जाते हैं। और ये सारे मसाइल आपने अगर पढ़ लिए हो तो बहुत अच्छा, अगर ना पढ़े हो तो आपको कुछ बुक्स बता दी जाएंगी, उन बुक्स की रोशनी में आप पढ़ लें, क्योंकि यहाँ पर कंबाइंड सेशन होता है नॉर्मली तौर पर। तो ये इस क्लास में, इस सेशन के अंदर मसले नहीं बताए जाते, क्योंकि कई मसलक के लोग भी होते हैं, उनके मसलक के एतबार से थोड़े मसले अलग होते हैं, लिहाजा उनको चाहिए कि वो अपने मसलक के एतबार से मसले सीख लें। यहाँ पर विजडम बताई जाती है, उसकी हिकमत बताई जाती है, क्योंकि विजडम और हिकमत और शरीयत की विजडम और हिकमत सबके लिए कॉमन है और एक ही है। तो तहारत के टॉपिक में सबसे पहली चीज जो हम सीखते हैं, सबसे ज्यादा मसाइल और अहकामात सीखते हैं। लेकिन सिर्फ मसाइल और अहकामात पे ही तहारत डिपेंड नहीं है, बल्कि उससे बढ़ करके तहारत का जो मामला है वो थॉट्स और इमोशंस हैं, अक्ल और जज्बात हैं। कि अगर हमारी सोच पाक नहीं रही तो हम अगर नमाज पढ़ने के लिए खड़े हुए और नमाज पढ़ने में खड़े हैं और हमारी इमाम से लड़ाई चल रही है, या हम इमाम है पीछे वालों से लड़ाई चल रही है, और हम नमाज पढ़ने के लिए आगे और इमाम को लग गया कि हमारे पीछे फलां साहब नमाज पढ़ रहे हैं, और इमाम साहब उसके बारे में सोचने लगे कि बड़ा नालायक है, बड़ा कमीना है, इससे बुरा कोई आदमी नहीं, तो उनकी नमाज अदा नहीं होगी। पीछे पढ़ने वाले इमाम साहब के बारे में या बाजू में कोई आकर के खड़ा हो गया और उसके बारे में हमारे दिल में बुरा ख्याल, दिमाग में बुरे ख्यालात आने लगा कि इसी गधे को आना था, इसी मनहूस को आना था, ये ख्यालात हमारे दिमाग के अंदर आने लगे, तो इसका मतलब है कि हमारी थॉट्स और हमारे इमोशंस, हमारे अक्ल और हमारे जज्बात तहारत नहीं रखते, नापाक है। और नापाक इमोशंस के साथ और जज्बात के साथ नमाज भी कबूल नहीं होगी, और जब नमाज ही कबूल नहीं होगी तो कल रोज़े क़यामत सबसे पहले ईमान के बाद सबसे पहला जो सवाल होगा वो नमाज का होगा। मैदान महशर में जो मंजर होगा, जो सीन होगा, वो सीन इस तरह से होगा कि लोग भागे हुए चले आएंगे, और जब भागे हुए आएंगे तो हिसाब किताब जब शुरू होने का सेशन जब शुरू होने के लिए जाएगा, मैदान अरफात को फैला दिया जाएगा, एक्सपैंड कर दिया जाएगा, और वहां पर सारे लोगों को जमा करके हिसाब किताब जब शुरू होगा तो सबसे पहले जो है टोकन के एतबार से कैटेगरीज बनाई जाएंगी, यानी जुमरे बनाए जाएंगे, और जो है उसके ग्रुप्स बनाए जाएंगे। जिसके पास ईमान का टोकन होगा वो ईमान वालों में चला जाएगा, और जिसके पास ईमान का टोकन नहीं होगा वो जो है पहले ही उठा करके जहन्नम में डाल दिया जाएगा कि ईमान ही नहीं तो तुम्हारा हिसाब किताब फिर किस बात का, जाओ हमेशा के लिए जहन्नम में जलो। लेकिन जिनके पास ईमान होगा, अब ईमान अब किस लेवल का है, ईमान 2% पर है कि 10% पर है कि 100% के ऊपर है, ये सवाल हिसाब किताब बाद में होगा। और उसके बाद सबसे पहला जो सवाल होगा वो नमाज के बारे में होगा। रोज़ महशर की जां गुदाज बुअत, रोज़ महशर की जां गुदाज बुअत, अव्वली पुरसिश नमाज बुअत। सबसे पहले नमाज की पूछ होगी कि तुमने नमाज कितनी पढ़ी है, किस तरीके से पढ़ी है, खुशू और खुशू के साथ पढ़ी है कि ऐसे ही दिमाग में बुरे ख्यालात रख करके पढ़ी है। तो तहारत के अंदर देखिए, अब आप खुद चेक कीजिए कि इमोशंस और थॉट्स को पाक करने के लिए शरीयत ने क्या गाइडेंस दिया है और क्या कैरेक्टर हमारा बनाया। इसी थॉट्स और इमोशंस की पाकी के साथ आता है कैरेक्टर और अखलाक और किरदार आता है। इसी से एक मुसलमान का कैरेक्टर बनता है। तो तहारत के किस्मों के अंदर नंबर 1 आता है मसाइल और अहकामात, नंबर 2 आते हैं अक्ल और जज्बात, और तीसरी चीज उससे ज्यादा भी इंपॉर्टेंट है जिसको कहा जाए कि हमारी ओबीडियंसी वाली जो लाइफ है, फरमाबरदारी वाली जो जिंदगी है, वो इसी के ऊपर डिपेंड है, और वो है सोल एंड हार्ट, कल्ब और रूह की तहारत। दिल गंदा है तो ईमान उसमें टिक नहीं सकता, याद रखिएगा। ये खुदा वो खुदा, ये पत्थर वो मूर्ति, ये चीजें ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही, ला इलाहा इल्लल्लाह भी सही, तो इंसान मुसलमान नहीं हो सकता, उसका ईमान वैलिड नहीं होगा। वैलिडिटी उसकी उसी वक्त होगी कि जब दिल और रूह हमारी पाक हो। तो दिल और रूह को पाक करने के 2 तरीके होते हैं, एक को कहा जाता है थियोरिटिकल, एक को कहा जाता है प्रैक्टिकल। थियोरिटिकल जो होता है उसको ईमान कहते हैं, और प्रैक्टिकल जो होता है उसको इस्लाम कहते हैं। थ्योरी के अंदर जब हम आते हैं तो थियोरिटिकल दिल को और रूह को पाक करने के लिए जो हम काम करते हैं उसी को अकीदे तौहीद कहा जाता है।
अकीदे तौहीद की भी के भी सेशन है, क्लासें आपकी हैं, और बैच 1 वालों के लिए ये गुजर भी चुका है कि अकीदे तौहीद कहते किसको हैं, बंधन को कहते हैं, कॉन्फिडेंस और यकीन को कहते हैं जो एक अल्लाह ने हमें दिया है वन्नेस और वहदानियत के उन्वान पे, उसको दिल में बसा लेना अकीदे तौहीद कहलाता है। जब थ्योरेटिकल यानी ईमानी पहलू को अपने दिल में हम लाते हैं, जिसको हम अकीदे तौहीद कहते हैं, एक अल्लाह का यकीन दिल में बसाते हैं, और ये बात भी बसाते हैं कि आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके बाद कोई नबी नहीं आना है वो बरहक हैं, तो उसको सीखने के लिए 3 लेवल्स हमारे सामने आते हैं। पहला लेवल ईमान मुजमल कहलाता है, जिसको कहा जाता है सिंपल डिक्लेरेशन, जिससे कि एग्जाम्पल हम बार बार दिया करते हैं कि किसी कॉलेज में हम गए और किसी स्कूल में जब गए, वहां पे फॉर्म जब फिलअप करते हैं तो फॉर्म फिलअप करते वक्त में कॉलेज का क्या यूनिफॉर्म होगा, क्या रूटीन होगा, कौन सी क्लास किस वक्त होगी, ये सब फॉर्म में नहीं लिखा रहता, लेकिन नीचे हम डिक्लेयर करते हैं कि मैं यहाँ का टर्म्स और कंडीशन मैं कबूल करता हूँ, मैं डिक्लेयर करता हूँ कि ऊपर जो बातें हमने कही हैं वो बिल्कुल सही हैं। तो इसी तरह से सिमिलर ईमान मुजमल अकीदे तौहीद के लिए सबसे बेस होता है, जिसमें हम ये कहते हैं कि आमनतु बिल्लाही कमा हुआ बि अस्माइही व सिफातिही व क़बिलतु जमीअ अहकामिही, कि मैं अल्लाह पर ईमान लाया कमा हुआ जैसा भी है, जहां पर भी है, हमेशा से हमेशा रहेगा, और उसकी सिफात के साथ और उसके नामों के साथ और उसके तमाम कमांड्स को और तमाम अहकामात को मैं कबूल करता हूं। तो अकीदे तौहीद की बेस और बुनियाद पड़ती है ईमान मुजमल से। जब ईमान मुजमल में एक बेसिक डिक्लेरेशन कर देते हैं कि इम्प्लिसिट ओबीडियंसी के लिए मैं तमाम चीजें एक्सेप्ट करता हूं जो अल्लाह ने दिया है, तो फिर उसके लिए हमें कलमे दिए जाते हैं, और कलमे में हमें पहला कलमा, दूसरा कलमा, तीसरा कलमा, चौथा कलमा, 5वां कलमा और कहीं कहीं 6ठा कलमा, और उसके साथ साथ ईमान मुफस्सल हमको दिया जाता है। जब ये कलमे पढ़ते हैं तो 6 कलमे, इसकी क्या विजडम होती है, कभी हमने गौर किया? बचपन से लेकर ये उम्र हमारी हो गई, कभी गौर किया कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ तय्यिब, व्हाट इज द विजडम बिहाइंड तय्यिब? शहादा क्यों तय्यिब के बाद ही आता है, पहले नंबर पर शहादा क्यों नहीं आ सकता? व्हाट इज द ग्रेटनेस ऑफ 3rd कलमा, कलमा तमजीद? जब और कलमे तौहीद अभी शुरू में अकीदे तौहीद सुना, फिर कलमे तौहीद 4था कलमा आ गया, क्यों रद्द कुफ्र और कलमा इस्तिग़फ़ार, ये सारे के सारे अल्फाज क्यों लाए जाते हैं? ये विजडम क्या हमारी जिंदगी में आती हैं? क्या यूं ही ऐसे ही इसको रख दिया गया, या इसके रेफरेंसेस हैं? क्योंकि इस्लाम का जो भी रेफरेंस है, जो भी इस्लाम के जो रूल हैं, वो सारे के सारे रूल जो हैं वो आते हैं कुरान और हदीस से। तो कहां से ये आए, कभी हमने गौर किया है? तो अकीदे तौहीद में नंबर 1 पर पहले आता है सिंपल डिक्लेरेशन, ईमान मुजमल, फिर उसकी ट्रेनिंग आती है कलमों के जरिए से, और फिर जो है पिलर्स ऑफ ईमान के जरिए से ये थ्योरी पूरी की जाती है। पिलर्स ऑफ ईमान में क्या चीजें आती है, जिसको ईमान मुफस्सल कहा जाता है, और ईमान मुफस्सल में ही 7 पिलर्स ऑफ ईमान मौजूद होते हैं। आमनतु बिल्लाही व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिरी वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला वल बाअसी बअदल मौत। 7 पिलर्स आते हैं, और इन 7 पिलर्स के ऊपर हमारा ईमान होना जरूरी है। और एक शख्स जो ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ता है, शहादत देता है, लेकिन नऊज़ बिल्लाह वो कहता है कि हम आखिरत को नहीं मानते, आखिरत किसने देखा है? कोई कहता है हम फरिश्तों को नहीं मानते, कोई कहता है किताबों को नहीं मानते। किसी एक चीज का भी उसने इनकार कर दिया तो उसकी थ्योरी गलत हो गई और उसका दिल पाक नहीं हो पाएगा, यानी वो मुसलमान नहीं हो पाएगा। अब आपने देखा कि पाकी से ही जुड़ी हुई बात सोल एंड हार्ट है, और पाकी से ही जुड़ा हुआ ईमान है, और ईमान ही से जुड़ा हुआ अकीदे तौहीद है, और अकीदे तौहीद की डिफिनेशन और वजाहत ईमान मुजमल, कलमों और ईमान मुफस्सल से होती है, और इन्हीं से जो है पिलर्स ऑफ ईमान बनते हैं। और ये तमाम का तमाम जब मिलता है तो इसका कनेक्शन आकर के जुड़ता है हमारे दिल की सफाई और पाकी से, और जब दिल के अंदर ये तमाम चीज़ें आ जाती हैं, जिसमें हम ये डिक्लेयर कर देते हैं कि कबील तो जमीआ अहकाम ही, अल्लाह के तमाम अहकाम को मैंने कबूल किया। तो क्या सिर्फ अहकाम को कबूल कर लेने से हमारी ज़िंदगी गुजर जाती? एक स्टूडेंट अपने टर्म्स और कंडीशन पर सिग्नेचर करता है कि मैं तमाम टर्म्स कंडीशन को कबूल करता हूं, मैं कॉलेज के तमाम उसूल को, रूल्स को मैं फॉलो करूंगा, लेकिन नहीं करता है। उन्होंने कहा मैंने कह दिया ना मैं करता हूं, लेकिन नहीं करता है। तो कितने दिन तक कॉलेज वाले बर्दाश्त करेंगे?
کالے واجے ایک مرتبہ دو مرتبہ سمجھائیں گے، باقی اس کو اٹھا کے باہر کر دیں گے کہ تم جھوٹ بولتے ہو کیونکہ دل میں تمہارے کچھ اور ہے اور زبان پہ کچھ اور ہے، اس لیے تم اس کالج کے اسٹوڈنٹ نہیں ہو سکتے۔ سملرلی اسی طرح سے دل میں ایمان رکھ لیں، کلمہ خوب پڑھ لیں، لیکن اگر پریکٹیکل ہم ان اللہ کے احکامات کو اپنی زندگی میں ہم فالو نہیں کرتے، نہیں لاتے، تو پھر ہماری تھیوری پوری نہیں ہو پائے گی اور ہماری پریکٹس صحیح قسمت پہ نہیں آ پائے گی۔ تو تھیوری کے بعد پریکٹس کا لیول آتا ہے۔ آپ یہاں پہ دیکھیے سول اینڈ ہارٹ کے اندر پہلے ہم نے تھیوری یعنی ایمان کے ذریعے سے، نظریاتی پہلو ایمان کے ذریعے سے اپنے دل کو پاک و صاف کر لیا اللہ کے حکموں کو فالو کرنے کے لیے۔ تو دل میں جن چیزوں کو ہم بساتے ہیں زبان سے اسی کو کہنا پڑتا ہے، جس کے ڈیفینیشن آپ کو اسلام کے انٹروڈکشن میں آئے گی کہ یہ 3 لیول پر ہوتا ہے۔ پہلا ہوتا ہے اٹیسٹیشن بائی ہارٹ، تصدیقم بالجنان، دل میں یہ یقین رکھنا، اور جو دل میں ہے اسی کو زبان سے بولنا، اٹیسٹیشن بائی ٹنگ، یعنی زبان کے ذریعے سے اس کو قبول کرنا، اس کا اظہار کرنا۔ تو زبان سے ہم نے کہہ دیا کہ میں فرما بردار ہوں، میں فرما بردار ہوں، تو پریکٹیکلی ہاتھ پیر سے بھی تو فرما برداری کرنا پڑے گا۔ ہاتھ پیر سے فرما برداری نہیں کیا تو فرما بردار نہیں کہلائیں گے۔ ایک بیٹا اپنے باپ سے کہتا ہے ابا میں آپ کو بہت مانتا ہوں اور آپ سے مجھے بڑی محبت ہے، میں آپ کا بہت فرما بردار ہوں۔ بیٹا ابا کہیں ہاں بیٹا مجھے یقین ہے، اچھا بیٹا ایسا ہے کہ یہ کچرا رکھا ہوا ہے، تم لے جا کر کے اچھی جگہ پہ، صاف ستھری جگہ جو ہے ڈسٹ بن کے اندر پھینکنا تاکہ صفائی ستھرائی رہے۔ ہاں ابا میں آپ کی بات سمجھ گیا، میں مانتا ہوں۔ اور شام تک ویسے ہی کچرا پڑا رہا۔ ابا پوچھیں گے بیٹا کیوں نہیں کیا؟ نہیں ابا میں آپ کے فرما بردار ہوں، بس کافی ہے نا آپ کے لیے۔ ظاہر سے بات ہے فرما برداری اس کو نہیں کہیں گے۔ کہتا ہے کہ میں فرما بردار ہوں تو اس کو وہی کام کرنا پڑے گا۔ اسی طرح سے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کو ہم مانتے ہیں، دل میں اللہ کا یقین رکھتے ہیں، قبل تو جمیع احکام ہی کہتے ہیں، تو پھر اٹیسٹیشن بائی لمس، اپنی زندگی میں پریکٹیکل اس چیز کو لانا ضروری ہے، اور جہاں سے پریکٹس آتی ہے وہیں سے اسلام آ جاتا ہے۔ اور اسلام کی ڈیفینیشن بھی آپ کے سامنے اور ڈیٹیل آئے گی کہ اسلام کا اوریجن ورڈ کیا ہے۔ سلام سے بنا ہے، تسلیم سے بنا ہے، سین لام سے بنا ہے، امن سے بنا ہے، شانتی سے بنا ہے، اور اوبیڈینسی سے بنا ہے، یعنی پریکٹیکلی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ کے نبی کی اوبیڈینسی اپنی زندگی میں دکھانا اسلام کہلاتا ہے۔ یہیں سے پریکٹس آ جاتی ہے۔ اب جب پریکٹس کا پہلو آتا ہے تو یہاں پر بھی آپ کو 2 لیول دکھ رہے ہیں، ایک دکھ رہا ہے حقوق اللہ اور ایک دکھ رہا ہے حقوق العباد۔ حقوق اللہ، رائٹس آف ڈیوٹیز آف اللہ سبحانہ و تعالی، ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ داریاں رکھی ہیں، جو ڈیوٹیز رکھی ہیں، وہ کیا ہیں؟ اب رائٹس اور ڈیوٹیز اللہ کی جو ہمارے اوپر ہیں، جن کو حقوق اللہ کہتے ہیں، جس کو عام لینگویج میں، عام زبان میں عبادات کہتے ہیں۔ تو اللہ کے جو حقوق ہمارے اوپر ہیں، جن کو ہم کو پریکٹیکل ادا کرنا ہے اور فرض کر دیے گئے ہیں، اسی کو پلرز آف اسلام کہتے ہیں، جس کو بنی الاسلام علی 5 کے نام سے ہم جانتے ہیں کہ اسلام کی 5 بنیادیں ہیں۔ there are 5 pillars in اسلام۔ ہمارے اسلام کو باقی رکھنے کے لیے 5 پلر ہیں۔ تو 5 پلر، اس کو رائٹس اور ڈیوٹیز آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہا جاتا ہے، جس کو جنرل لینگویج میں، عام زبان کے اندر عام زبان کے اندر جو ہے عبادات کہا جاتا ہے، جس میں نمبر 1 پر آتا ہے کلمہ شہادت، یعنی زبان سے کلمے کی شہادت بھی دینا۔ اگر ایک شخص کی زندگی میں کبھی کسی نے کلمہ نہیں سنا ہے اور کوئی گواہی نہ دے مرنے کے بعد اس کے، یعنی نماز بھی نہ پڑھتا ہو، کسی نے پریکٹیکل اسلام میں بھی نہ دیکھا ہو، اور کوئی گواہی نہیں دینے والا ہو کہ اس نے کبھی کلمہ بھی پڑھا ہے، تو اس کا جنازہ پڑھنا جائز نہیں ہوگا۔ لیکن ایک شخص نماز نہیں پڑھتا تھا لیکن کبھی بقرعید عید میں دکھ گیا، مگر وہ کلمہ پڑھتا ہوا دکھتا تھا، تو اس کا گناہ تو اس کو ہے ہی، لیکن اس کے صرف کلمے کی گواہی کی وجہ سے اس کی جنازے کی نماز پڑھی جائے گی، کیونکہ کلمہ دل کے اندر تھا اس کے۔ تو کلمہ شہادت، پھر صلاۃ، نماز، صوم، زکوٰۃ، حج، یہ 5 جو ہیں حقوق اللہ کے اندر آتے ہیں۔ تو جس طرح سے یہ فرض ہے ہماری زندگی کے اندر، جانتے بوجھتے نماز کو چھوڑنا کفر ہے، جانتے بوجھتے روزہ چھوڑنا کفر ہے، جانتے بوجھتے دولت ہوتے ہوئے بھی زکوٰۃ نہ نکالنا کفر ہے، مال دولت رکھ کر کے زندگی میں 1 مرتبہ کم از کم حج نہ کرنا کفر ہے، اس کا انکار کرنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ تو سملرلی اسی طرح سے ہمارے اسلام کے پریکٹیکل پہلو کے اندر دوسری چیز ہے رائٹس آف اللہ کریشن، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو مخلوقات ہیں ان کے حقوق، جس کو حقوق العباد کہا جاتا ہے۔ حقوق العباد کے اندر، جس کو عام لینگویج میں ہم معاملات کہتے ہیں۔ اب معاملات میں 3 طرح کے معاملات ہوتے ہیں، مینرز اینڈ ایتھکس۔ مینرز اور ایتھکس جو ہے یہ آج کل کے فیشن نہیں ہے، بلکہ اسلام میں فرض ہے۔
जानते बूझते नमाज को छोड़ने वाला काफिर हो जाता है, तो इसी तरह से जानते बूझते अपने मैनर्स को खराब करने वाला भी काफिर हो सकता है। जिस तरह से कोई इनकार कर दे किसी नमाज का, रोजे का, वो काफिर हो जाएगा, इसी तरह से कोई इनकार कर दे कि मैं माँ बाप के हक को नहीं मानता, ये माँ बाप ने मुझे क्यों पैदा कर दिया, क्या एहसान कर दिया मेरे ऊपर, और माँ बाप के मेरे ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है, तो समझ लीजिए कि वो भी सिमिलर लाइक काफिर है मैनर्स और एथिक्स के अंदर। और सोसाइटल बेटरमेंट भी उसके फर्ज के अंदर आता है। इसीलिए आप देखिए इस्लाम ने हराम और हलाल रखा है। सोसाइटल बेटरमेंट यानी सोसाइटी को अच्छा करने के लिए जो काम किए जा सकते हैं वो हमको करने हैं। सोसाइटी को खराब करने वाले कामों में ना हिस्सा लेना है, ना साथ देना है। शराब बनाने वाले, अगर कोई मुसलमान शराब जानबूझ करके शराब की कंपनी में काम करने लगता है और शराब बनाने लगता है, तो वो भी लाइक एक काफिर है। ऐसे ही गुटखा है, सिगरेट है, नशे वाली चीजें हैं, वायरस बनाने वाली चीजें हैं, जो सोसाइटी को नुकसान पहुंचाएं, वो नुकसान पहुंचाने वाले काम कुफ्र कहलाते हैं। इवन यहां तक कि बेजरूरत आप देखिए सोसाइटी के अंदर ये जो पेड़ पौधे हैं वो हमें फ्रेश ऑक्सीजन देते हैं, इनके अंदर भी जान है, ये हमारे फायदे के लिए हैं। जरूरत के लिए इनकी लकड़ियां काट करके हम उसे बनाते हैं, फर्नीचर बनाते हैं, इस्तेमाल करते हैं। लेकिन बेजरूरत चलते फिरते किसी ने पौधा लगाया, हमने बस ऐसे ही जिद में करे बड़ा आया आम लगाने वाले, बड़ा आया अमरूद लगाने वाले, हमने उसको तोड़ दिया, तो ये भी काफिराना अमल है, काफिर हो जाता है इंसान इससे भी। तीसरी चीज है सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटीज की। पूरी सोसाइटी के अंदर हमारी जिम्मेदारियां क्या हैं, अल्लाह ने क्या जिम्मेदारियां रखी हैं, और इस मुल्क को सही चलाने के लिए अदल और इंसाफ और जस्टिस के साथ किस तरह से करना है, ये तमाम की तमाम चीजें इस्लाम के प्रैक्टिकल पहलू के मामलात में आती हैं, और हमारी जिंदगी के अंदर ये भी लाजिम और जरूरी है। ये बात बड़ी परेशानी वाली है कि हम मुसलमानों ने सिर्फ नमाज, रोजा, हज, ज़कात को ही इस्लाम समझा है। हम जो सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, मैनर्स हैं और एथिक्स हैं, इसको इस्लाम नहीं समझते। कोई अगर बिजली चोरी कर रहा है तो हम भी चोरी करने चाहते हैं, अगर सब चोरी करें तो हम क्यों ना करें। तो रोज़े क़यामत जब खड़ा होकर अल्लाह ताला के फरिश्ता पूछेगा सब जहन्नम में जा रहे हैं, जाओगे? तुम तो भागेगा। तब उसको फरिश्ते याद दिलाएंगे कि सब चोरी कर रहे थे, तुम भी कर रहे थे, लो जाओ जहन्नम के अंदर। उस वक्त तो हाय अफसोस करने का कोई फायदा नहीं होगा। सच बोलना लाजिम करार दिया गया। 10 पैसा लेकर के झूठी गवाही दे देना, रिश्वत दे देना, ये सारी की सारी चीजों में इस्लाम में फरीजे में नहीं समझा जाता है। अटेंडेंस रिश्वत दे करके लगा देना, पैसा दे करके सर्टिफिकेट खरीद लेना, ये वो चीजें हैं कि जिसको इस्लाम हलाल और हराम से ताबीर करता है। और ये कहता है कि हराम लुकमा जिसके मुंह में चला गया 40 रोज तक उसके नहुसत हमारे जिस्म के अंदर मौजूद रहती है, दुआएं भी नहीं कबूल होती। एक वाक़या आता है कि हज्जाज इब्न यूसुफ नाम का एक शख्स था जो गवर्नर था एक ज़माने में, और ये ज़माना अरब का यानी तकरीबन 100 साल के करीब का ये ज़माना था हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद। वो गवर्नर था, बड़ा जालिम था, उसकी कुछ क्वालिटीज़ भी थी, लेकिन उसको जुल्म करना मजबूरी हो गया था कि लोग मानते ही नहीं थे। लेकिन बड़ा जालिम था कि उसके सवाल का जवाब कोई न दे तो सिर्फ गर्दन उतार दिया करता था। बाज हिस्ट्री की बाज किताबों में लिखा है कि आपने हाथ से भी 10,000 लोगों की गर्दनें काटा था उसने। एक जगह गया वहां पर गवर्नर बना करके, तो वहां के लोगों ने कहा कि इस जगह पर बुजुर्गों की एक जमात है जिसको मुस्तजाबुद दावत कहते हैं, ये बद्दुआ कर देगी तो तुम खत्म हो जाओगे, इसलिए तुम यहां मत जाओ। उसने कहा कोई बात नहीं है। उसने बहाना करके बुजुर्गों को बुलाया, सीधे साधे लोग थे अल्लाह वाले, बुजुर्गों को बुलाया और एक दावत कर दी, उनको खिला के इज्जत के साथ रुखसत किया, और जाते वक्त में कहा कि हजरत आप लोग, अब मैं जो कुछ भी करूंगा उस पर कितना भी बद्दुआ करना हो आप करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, इसलिए कि मैंने आपके खाने में हराम मिला दिया था। ये वाकया सच हो या ना हो, लेकिन इसकी जो मोरल है, इसका जो अखलाकी पहलू है, वो हमें और आपको बताता है कि हराम लुकमा जिस्म में गया और फ्रॉड के साथ कोई कमाई खाई गई, चोरी के साथ कोई कटिया डाल करके या बिजली का कनेक्शन लेकर के खाना पकाया गया, ये सब हराम लुकमे में आता है। हराम लुकमे से हराम खून बनता है और हराम खून से इबादत कबूल नहीं होती हैं। यह है इस्लाम का प्रैक्टिकल पहलू जिसको हमको समझना चाहिए। यही सारी चीज़ें आपको कैरेक्टर बिल्डिंग में समझाई जाएंगी ताकि हम और आप इस दुनिया में भी अच्छे इंसान रहें और अल्लाह के अभी जब जाएं तो अच्छे लोगों में रहें। और हमारे तमाम के तमाम रेफरेंसेस जो हैं वो कुरान और हदीस हैं। कुरान
हमारा प्राइमरी सोर्स है, और हदीस इंप्लीमेंटेशन ऑफ कुरान है, प्रैक्टिकल सोर्स है। कुरान थ्योरी है तो हदीस और सुन्नत उसके प्रैक्टिकल पहलू हैं। ये डिटेल्स आपको लाई जाएंगी। बैच 1 की यहीं से क्लासें आगे बढ़ेंगी, और इंशाल्लाह साल भर में कुरान और हदीस के बारे में अच्छी तरह से मालूमात भी हो जाएंगी। बल्कि कुछ बच्चियां इसमें ऐसी हैं जिनको यूज़ किया जाएगा कि आगे के सेशन में वो भी कुछ क्लास लें। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं, कुछ क्लास उनको असाइन किया जाएगा। अगले हफ्ते से ही असाइनमेंट ये दिया जाना शुरू हो जाएगा। तो ये देखिए, छोटा सा एक डायग्राम आपके सामने पेश किया गया, और इस डायग्राम को अपने सामने रख करके हम और आप आइए हम ये चेक करें कि हमारा ईमान है सही या नहीं है, हम कितने लेवल पर हैं। इतनी बातें हमको मालूम है या नहीं है। नहीं मालूम है तो फौरन मालूम करने की कोशिश करें, और अगर मालूम है तो इसको बढ़ाने की कोशिश करें, और हर पहलू को समझें, यकीनी तौर पर रखें। और याद रखिए कि रिमेंबर यू विल बी क्वेश्चनड, याद रखिए आपसे सवाल होगा।